Hello everyone. So last 2 days before CAT, and at this point of time, some of you are feeling anxious and afraid, and जो पेट में butterflies होती हैं वो हो रही हैं. So it is very normal, guys. It is very normal. It happens with everyone. So I thought I should create a video for you guys so that you can feel motivated and you can take the exam pretty good with your strength and with your full potential. So those who do not me, myself is Lokesh Agrawal and I take classes for Quant and LRDI. And I'm here to give you some tips which you need to do in last 2 days and which you should not do in last 2 days before CAT. So first thing, just remember this, just remove this T from I can't do it. Always remember you can do anything and everything, guys. Just remember a quote of Swami Vivekanand that the power is within you. You can do anything and everything in life, but only if you want it, right? Your motivation, your willpower should be that much that yes, I have to do it, I can do it. So at this moment, you have to just think about your all positive energy or positive strength. Do not think anything negative. Okay, so let's check the slides which I have created. Certain points which you need to remember. Go one by one. Start with that quote. Don't talk. नाउ इट इज टाइम टू जस्ट एक्ट गाइस. बहुत बातें हो गई, बहुत सारा कुछ कर लिया है. अब टाइम है इसको शो करने का. जस्ट एक्ट. डोंट से, जस्ट शो. इसको शो करो, काम करो, दिखाओ कि यस मैंने करा है, मेहनत करी है. डू नॉट प्रॉमिस, जस्ट प्रूव. सो योर रिजल्ट्स विल प्रूव, योर एक्ट विल प्रूव, योर hard work which you have done it in last 1 year. Now it is time to show it. So do not talk now, just show and give your best shot. I'm sure you are going to do pretty good in the exam. You have to just be confident enough. So certain points which I have written over there. Points to remember in last 2 days: remain calm and positive. Now this is a very important word, guys. Positive. At this point, you have to just think about positive things. Do not feel नर्वस और एंशियस कि यार मुझसे तो नहीं होगा, मैं सब कुछ भूल रहा हूँ, भूला भूला सा लग रहा है. नहीं, ऐसा सबके साथ होता है. इट्स प्रीटी नॉर्मल. तो उसको, उस डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो. रिमेन काम एंड पॉजिटिव इन लास्ट 2-3 days. आई एम श्योर if you remain calm and positive, then definitely you can do even better what you are capable of. Okay, consolidate your preparation and strength. Now it is time to consolidate. Just recall all those positive things, your strength which you are in good. Do not think कि मुझे ये नहीं आता है, मुझे ये वाला पॉइंट नहीं आता है. जस्ट थिंक कि मुझे कितना आता है. तो जो नहीं आता है उसको छोड़ दो. इस पॉइंट पे यू कैन नॉट वर्क ऑन दैट, यू कैन नॉट इम्प्रूव ऑन दैट. बट जितना आता है वो काफी आता है. सो उसको कंसोलिडेट करो, इकट्ठा करो एक जगह अपने माइंड में. अपनी स्ट्रेंथ को याद करो, रादर अपने नेगेटिव पॉइंट्स और जो वीकनेसेस हैं उनको याद करो. ठीक है, हमने बहुत कुछ करा है, एक दो चीजें नहीं आती हैं, लीव इट राइट नाउ. At this point of time, you can take 40-minute sectional test as well if you want for last one day. I'll not suggest to take sectional test on the one day before CAT, but कल और ले सकते हो 25th को. आज लेना चाहो आज भी ले लो. अपने पॉइंट्स देखो कि किस सेक्शन में जो स्ट्रेटजी बताई गई है आपको वो आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. फाइनलाइज योर स्ट्रेटजी. अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, बट आज और आप सेक्शनल टेस्ट लेके देख सकते हो. 3 सेक्शनल टेस्ट लो, 40-40 मिनट के, इकट्ठा मॉक बंद हो, सेक्शनल टेस्ट दो. ठीक है, मेक योर ओन लिस्ट ऑफ स्ट्रेंथ. जैसे मैंने बोला, इस पॉइंट पे आपकी जो भी स्ट्रेंथ है कि यार मेरे को, मैं ऑड वन आउट बहुत अच्छा करता हूँ, मैं पैरा समरी बहुत अच्छा लिख लेता हूँ, मैं नंबर्स के सारे क्वेश्चन कर लेता हूँ या अर्थमेटिक कर लेता हूँ, या मेरे को अगर अरेंजमेंट बेस्ट सेट आएगा मैं कर लूंगा, डीआई आएगा मैं कर लूंगा. तो अपने जो स्ट्रेंथ है उनके पॉइंट्स बनाओ. नेगेटिव नहीं, सिर्फ स्ट्रेंथ सोचना है. ठीक है, बहुत सारी स्ट्रेंथ है, नेगेटिव कम है. तो क्यों सोचे हम अपने नेगेटिव्स को, जो हमारी स्ट्रेंथ है हम उनको सोचना. check create a checklist. What mistakes not to repeat and what mistakes we need to avoid. Now this is a pretty good point, guys, which you need to make a checklist. कि जो मिस्टेक हम कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, जल्दबाजी में आंसर मार्क कर रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बना लो छोटी सी.
बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि यार मुझे इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है पेपर देते समय। तो अगर आप ऐसी एक चेकलिस्ट बना लोगे, उस समय आपको रिकॉल करने में आसानी होगी। यू कैन डू इट विथ प्रॉपर चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग कि यार मैंने ये गलती दोबारा तो नहीं की है। ठीक है, वो याद आ जाएगा आपको कि यार मैं क्वेश्चन पढ़ लिया, एक बार आंसर करने से पहले लास्ट लाइन पढ़ लो कि पूछा क्या गया क्वेश्चन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिली मिस्टेक्स नहीं करना है, नेगेटिव पॉजिटिव याद रखने हैं, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है। ठीक है, मेंटली प्रिपेयर्ड, इस वक्त यू नीड टू बी प्रिटी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। क्या एग्जाम है, बढ़िया से देना है, घबराना नहीं है। यू आर, देर इज नथिंग टू लूज गाइस, ओनली टू लर्न एंड ओनली टू गेन, नथिंग टू लूज। तो एज इस वक्त अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, मेंटली प्रिपेयर कर लो अपने आप को कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं। 27 को एग्जाम है, बढ़िया से देंगे, और रिजल्ट जो भी होगा डू नॉट थिंक अबाउट दैट। ठीक है, जस्ट फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ एंड पॉजिटिव थिंग्स। अगर वर्किंग हो, लास्ट के 2 दिनों में आई सजेस्ट टेक लीव फ्रॉम ऑफिस, छुट्टी ले लो और आराम, मतलब टेक इट इजी, मूवी देखो, जो भी देखना है, रिलैक्स करो, काम रहो 2 दिन में। लास्ट के ऑफिस जाके मतलब प्रेशर नहीं लेना है, वहां पे जो वर्कलोड है उसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो लास्ट के 2 दिन में आई सजेस्ट टेक लीव फ्रॉम ऑफिस फॉर श्योर। क्लियर है पॉइंट्स? और देखते हैं। द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टेकल। तो जैसे मैंने बोला, सक्सेस की जो की है वो है अपने गोल्स को देखना कि यार मैंने जो भी मेहनत करी है, मेरे को इस एक दिन पे डिपेंड है वो पूरे साल की मेहनत। तो मेरा जो गोल है वो है टू गेट अ गुड इंस्टीट्यूट, टू गेट गुड मार्क्स, टू परफॉर्म प्रिटी वेल। एंड ऑब्स्टेकल मत सोचो कि यार ये आएगा तो क्या होगा, वो आएगा तो क्या होगा, डू नॉट थिंक अबाउट इट। ठीक है, जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स। गोल के बारे में सोचोगे, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेंथ के बारे में सोचोगे, ऑब्स्टेकल अपने आप कम होती जाएंगी। जो ऑब्स्टेकल है उनसे बस निकलना है, उन पे अटकना नहीं। डू नॉट स्टक विथ एनी ऑफ द ऑब्स्टेकल। जो भी ऑब्स्टेकल है उनको छोड़ दो, उनको हम सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, उनको हम क्रॉस करने जा रहे हैं बेसिकली। तो आप उनको सॉल्व करने की कोशिश मत करो कि इसको तो मैं सुलझा के ही रहूंगा, इस ऑब्स्टेकल को नहीं। जंप इट ओवर, मैंने आपको आज दोपहर में भी बताया था ये चीज। जंप इट ओवर, लर्न जंप, हाउ टू जंप फ्रॉम ऑब्स्टेकल विच आर गोइंग टू हैम्पर योर परसेंटाइल। अगर गलत क्वेश्चन में अटके गए तो उनसे जंप कर जाओ, ऑब्स्टेकल से, उनको सॉल्व मत करो इस पॉइंट पे। और देखते हैं पॉइंट्स ना। कैट का जो एग्जाम है गाइस, इट इज नॉट लाइक अ सी एग्जाम। तो हमेशा याद रखो, सीए का जो एग्जाम होगा वो उसका सिलेबस एक डिफाइंड है। आपने अगर पढ़ लिया सब सब कुछ आप कर पाओगे। दिस इज नॉट अ सीए काइंड ऑफ एग्जाम, दिस इज अ वास्ट एग्जाम वेयर सिलेबस इज नॉट डिफाइंड, एनीथिंग कैन कम। तो ये मत सोचो कि जैसे हमने कॉलेज के एग्जाम दिए थे या सीए का एग्जाम दिया था, कैट का एग्जाम थोड़ा सा डिफरेंट है। एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम है, एप्टीट्यूड आपका हाई रहना है इस वक्त। Take the exam with your highest potential, not for the highest percentile. Now, this is again a very important point, guys. आपका जो भी हाईएस्ट पोटेंशियल है, जितना भी आपने मेहनत की है, जितना भी आपको आता है, एग्जाम उसके अकॉर्डिंग दोगे, ना कि हाईएस्ट परसेंटाइल को सोच के एग्जाम दोगे। आपकी अगर पोटेंशियल 90 परसेंटाइल की है तो उतना ही आएगा ना यार। ऐसा तो नहीं है आप आज रात ही रात में या 2 दिन में 99 पे पहुंच जाओगे, जैसे आपने कुछ वीडियोस देखे हैं कि हाउ टू गेट 99। ऑब्वियसली नॉट। तो आप अपना बेस्ट दोगे, जो भी आपकी बेस्ट है आप वो दे के आओ, जितना भी आपने प्रिपेयर किया। तो अगर आप इस पे फोकस रखोगे, परसेंटाइल ध्यान में नहीं रखोगे, तो डेफिनेटली आप इतना लाओगे। अगर परसेंटाइल ध्यान में रखोगे तो उतना भी नहीं आएगा। तो आपको अपना बेस्ट देना है, नॉट फॉर द परसेंटाइल स्कोर के अकॉर्डिंग। ठीक है, एग्जाम लेना है। कुछ लोगों के मन में आ रहा है कि यार हमने प्रिपरेशन तो करी नहीं है, इस वक्त सब भूल रहे हैं। ऐसा नहीं है, डेफिनेटली टेक द एग्जाम एंड दैट टू विद द पॉजिटिव माइंडसेट। और हमेशा याद रखो, इट इज जस्ट एन एग्जाम, नॉट द एंड ऑफ लाइफ। अगर खराब भी हो गया बाई चांस, क्या होगा, लाइफ खत्म तो नहीं हो रही है, और भी एग्जाम है। जो भी हमने यहाँ पे मिस्टेक करी है हम उसको अप्लाई करने वाले हैं अगले एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट ईयर भी पड़ा है। तो सिर्फ ये सोच के जाना है कि कुछ खत्म नहीं होने जा रहा है। गो विद अ पॉजिटिव माइंडसेट कि अच्छा ही होगा और बढ़िया करेंगे। एग्जाम ही तो है यार, कुछ ऐसा बिगड़ा नहीं है। ठीक है, बहुत अपॉर्चुनिटी पड़ी है आगे आने वाले टाइम में। यू आर नथिंग टू लूज। इसके साथ यू विल गेट एन इनसाइट एंड एक्सपीरियंस फॉर अदर अपकमिंग एग्जाम। तो जो इस एग्जाम में आपने गलती करी, जो भी आपने
मिस्टेक्स करी हैं उन पे आप काम कर सकते हो। अभी 1 महीना है, स्नैप के लिए भी हमारे पास 20-25 दिन है, एंड दिस विल गिव एन इनसाइट एंड एक्सपीरियंस फॉर अदर अपकमिंग एग्जाम। तो टेक इट एज एन एक्सपीरियंस, एंड दैट एक्सपीरियंस शुड बी एन हैप्पी एक्सपीरियंस, नॉट बी नर्वस, नॉट रिमेन कि यार नहीं देना एग्जाम, मन नहीं कर रहा एग्जाम देने, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट ऑफ टाइम खुश होके जाओ, सीखने के लिए जाओ। क्लियर है? स्टॉप बीइंग अफ्रेड व्हाट कुड गो रॉन्ग एंड थिंक ऑफ व्हाट कुड गो राइट। तो ये मत सोचो कि क्या हो जाएगा, गलत क्या हो जाएगा, ये सोचो कि यार अगर मैंने पेपर अच्छा कर दिया तो हो सकता है मेरा जो मैंने सोचा है उससे भी बढ़िया परसेंटाइल आ जाए। तो जस्ट थिंक अबाउट राइट, नॉट अबाउट कि क्या गलत हो सकता है इस वक्त। तो गलत होगा वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप राइट तो बहुत कुछ कर सकते हो ना। तो थिंक अबाउट दैट राइट। तो डरो नहीं कि नहीं आ रहा, भूल गया, नहीं, सब कुछ याद आ जाता है। जैसे ही पेपर शुरू होता है सब कुछ दिमाग में रिकॉल होना शुरू हो जाता है। दैट इज अ ह्यूमन नेचर। तो घबराना नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। अगर अच्छा गया तो क्या हो सकता है ये सोचो। और पॉइंट्स देखते हैं, बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं मैंने। कंडीशन योर बॉडी एंड माइंड। उस एग्जाम के लिए अपनी बॉडी एंड माइंड को प्रिपेयर करो, लिथार्जिक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अप टू डेट, बिल्कुल कॉन्फिडेंट एंड बिल्कुल तैयार रहनी चाहिए। आपकी बॉडी एंड माइंड प्रिपेयर होनी चाहिए उस टाइम के लिए। इस 2 दिनों में आप रिवाइज कर सकते हो। गो थ्रू द क्लास नोट्स प्लस ऑल द क्वेश्चन, डू नॉट सॉल्व इट, जस्ट गो थ्रू, जस्ट रीड इट, सॉल्व मत करो। सॉल्व सेक्शनल कर सकते हो जैसे मैंने बोला, बट रीड कर लो, वीडियोस देख लो क्विकली, बट क्वेश्चन इस वक्त सॉल्व मत करो, वो रिवाइज हो जाएंगे जल्दी जल्दी। नोट्स एक बार रिवाइज कर लो, फॉर्मूलेज एंड ऑल उनको रिवाइज कर सकते हो। अपनी स्ट्रेटजी फाइनलाइज करो कि पहले जैसे आरसी अभी तक करते हुए आए हो कि आरसी करनी है या ऑड वन आउट करने, पहले वीए पे खेलेंगे। पेपर को डेफिनेटली क्वांट सेक्शन में जैसे पहले गो थ्रू जरूर कर लिया करो 1-2 मिनट। जैसे मैंने हमेशा बोला कि अर्थमेटिक पहले करूंगा, 2 राउंड लूंगा, 1 राउंड लूंगा, जो भी आपने स्ट्रेटजी बनाई अभी तक उस स्ट्रेटजी पे आपको फाइनलाइज कर देना है। अब नई स्ट्रेटजी नहीं बनानी, दिस इज माय फाइनल स्ट्रेटजी एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू स्टक विद दैट। एंड अगर कुछ मेजर चेंजेस होते हैं एग्जाम में, देन यू शुड हैव अ बैकअप प्लान ऑल्सो, कि जो आपने सोचा वो नहीं आया, आपने सोचा था मैं अर्थमेटिक पे खेलूंगा और अर्थमेटिक कम आया, तो आपके पास एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ जो मैंने सोचा था, व्हाट आई डू। डू नॉट गो ब्लैंक, जैसे ही कुछ चेंजेस आते हैं ब्लैंक नहीं हो जाना है। बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी चेंजेस। जैसे मैं हर बार हर रोज समझा रहा हूँ ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर पहले वाले स्लॉट के लिए। यू नीड टू बी वेरी प्रिपेयर्ड। इफ समथिंग चेंजेस हैपेंस, इट इज गोइंग टू हैपन फॉर एवरीवन, सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड रेडी फॉर इट। क्लैरिटी इन योर माइंड, क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं कैसे करने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, कितना करना है, कैसा सेक्शन है, मुश्किल है, कितने करूंगा, गलत मार्क करने हैं नहीं करने हैं, टीटा मार्क करने हैं नहीं करने हैं, सब कुछ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो योर एक्यूरेसी रेट। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वंस यू हैव टेकन सो मेनी मॉक्स एंड सो मेनी सेक्शनल, यू नो योर एक्यूरेसी रेट गाइस, कि मेरा आरसी में कभी भी 50% से ज्यादा ठीक नहीं होता है, या मेरा एलआर में हमेशा मैं कुछ जो डीआई होता है वो सही कर देता हूँ या एलआर गलत कर देता हूँ। इस वक्त आपको अपना एक्यूरेसी रेट पता है, और आपको कट ऑफ परसेंटाइल भी पता है कि कितने स्कोर पे कितना परसेंटाइल आएगा और मुझे कितना स्कोर लाना है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो अगर आपको मान लो 10 क्वेश्चन सही करने हैं, तो यू शुड नो क्या मेरे को 15 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तब जाके मेरे एक्यूरेसी रेट उतना आ पाता है। अगर मैं कम अटेम्प्ट करूंगा तो डेफिनेटली मैं 10 क्वेश्चन ठीक नहीं कर पाऊंगा। तो अगर मेरे को 10 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, डू आई नीड टू इंक्रीज माई अटेम्प्ट, और मेरा अगर एक्यूरेसी रेट अच्छा है तो मैं कम अटेम्प्ट करके भी करेक्ट कर दूंगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको अपना एक्यूरेसी रेट पता होना चाहिए कि भैया 70% होता है मेरा इस सेक्शन में एक्यूरेसी रेट, या 80% होता है, उसी के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना, रेंडम अटेम्प्ट मत करना कि 20 अटेम्प्ट कर दिए पता चला सारे गलत हो गए या 10 गलत हो गए, ऐसा नहीं। तो जैसा एक्यूरेसी रेट है उसके अकॉर्डिंग काम करो। कीप योर एप्टीट्यूड हाई, जैसे मैंने बोला इस वक्त अपना एप्टीट्यूड हाई रखो। सिलेक्शन इज द की, दिस इज नॉट अ रट्टाफिकेशन का एग्जाम। तो जिसने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने आप को चेंज कर लिया वो डेफिनेटली कर पाएगा। एप्टीट्यूड हमेशा याद रखो, एप्टीट्यूड एक अलग चीज होती है, ऑन द स्पॉट थिंकिंग आनी चाहिए इसके लिए। स्ट्रक्चर योर स्लीप साइकिल गाइस। तो जो भी तुम्हारा स्लीप साइकिल है अपने एग्जाम टाइम के अकॉर्डिंग उसको मोल्ड करो। जिन लोगों का सुबह पेपर है और आप अगर रात को अभी भी 2 बजे तक जग रहे हो, तो फिर आपका बॉडी काम नहीं करेगा सुबह। तो आपका जो भी टाइम स्लॉट है उस टाइम स्लॉट में आपका बॉडी एंड माइंड
आपका बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। अगर आपका शाम को पेपर है, इस वक्त आपका बॉडी एंड माइंड बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। तो आपको एक दो मॉक ऑब्वियसली, जैसे हम पहले भी बोल रहे थे, आपने इस टाइम फ्रेम में ले लिए होंगे, और आपका जो स्लीप साइकिल है वो बहुत सही हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि लास्ट डे पता चला कि हम उठ ही नहीं पाए या फिर लेट हो गए, वो नहीं होना चाहिए guys। तो स्लीप साइकिल स्ट्रक्चर कर लो, अभी भी एक दो दिन है, यू कैन डू दैट। ये वाला जो पॉइंट है, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोर यू आस्क, थिंक अबाउट एग्जाम, मोर यू फील एंशियस। तो आप जितने लोगों से बोलोगे, पूछोगे कि यार तेरा कैसा प्रिपरेशन है, मुझे बहुत डर लग रहा है, जितना सोचोगे, जितना पूछोगे, उतना यू आर गोइंग टू फील एंशियस। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, डू नॉट वरी अबाउट कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग कैसा सोच रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट, जैसे मैंने बोला शुरू में भी, जस्ट थिंक पॉजिटिव। डू नॉट आस्क, जो होगा देखा जाएगा यार, सोचो ही मत इसके बारे में। इंजॉय करो, वॉच ए मूवी इन द लास्ट डे, एंड एक्सरसाइज करो ताकि तुम्हारी बॉडी बिल्कुल फ्रेश रहे, लिथार्जिक ना हो उस टाइम फ्रेम में। So these are the certain point, guys. If you keep in mind for last 2-3 days, I'm sure that you are going to do pretty well in the exam. घबराना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। एक एक पॉइंट सोच के लिखा गया है, अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हो, एक्यूरेसी रेट, ये सब चीजें, एक इसको दोबारा देख लेना, नोट कर लेना जो मैंने बताया। Nobody can stop you guys to get a good score. Okay, so with that, good luck and read it. If you believe in yourself, you do not have to fear any challenge. तो अगर आप में भरोसा है, बिलीव, फेथ जो हम हर बार बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली यू कैन हिंडर और क्लियर एनी ऑब्स्टेकल विथ फ्लाइंग कलर्स। तो विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम। योर स्टडी हार्ड एंड प्रिपेयर्ड वेल, नाउ इज दैट टेस्ट। वो एक साल जो मेहनत करी है उसको शो करने का टाइम आ गया है। तो दिखा दो सबको कि यू कैन डू दैट। वेरी वेरी गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, एंड मिलेंगे 26 को दोबारा, और चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, बाय बाय गाइस। एंड इसका फीडबैक जरूर शेयर कर देना। इफ यू लाइक इट, आई क्रिएट सम मोर videos like that, and you can share this video in other group as well. If you think that this is worth for others as well, you can do that. For that, good night, see you, bye bye.